Jai Hind, good morning to everyone. In this video, we will talk about syntax. It is not possible to talk about syntax or to discuss the syntax in one video or one lecture, so we will discuss its subtopics like subject-verb agreement in this video. After that, in further videos, we will discuss another things or another aspects of syntax. Syntax is very necessary thing in spotting errors. There are so many rules in English about syntax, so many expressions also. We will cover these things one by one. In this topic we will discuss about subject verb agreement. Before that, we will talk about what is syntax. Syntax means to provide a structure to the sentence so that the sentence is grammatically correct. Okay, so now we are going to subject verb agreement. Means subject should be agree with the verb in any sentence. For example, अगर हम ये कहें कि वे सब जाता है, then it is right or wrong, then everyone will say no, it is wrong, because वे सब के साथ जाता एग्री नहीं कर रहा है. हिंदी में ही देख ले रहे हैं तो ये हिंदी ग्रामेटिकली एरर है. यहाँ पे व्याकरण की दृष्टि से हिंदी में यह गलत है. मीन्स होना क्या चाहिए, वह जाता है या फिर वे सब जाते हैं. सो द वर्ब शुड एग्री विद द सब्जेक्ट, द फर्स्ट थिंग. And further, I want to tell you that we will upload another lectures of the syntax because it is very important topic and there are so many rules and exceptions. So what I want to tell you, it is not necessary to learn all the rules. Okay, the main thing is that to understand the examples. By understanding the examples, it is very easy to learn the rules. Means avoid learning rules. मीन्स लेके बैठ गए एक बार रूल्स पूरा याद करना स्टार्ट कर दिए, सो ऐसे वो जल्दी से याद भी नहीं होते हैं और ना ही उसी कोई मतलब रह जाता है, समझ में तो आता नहीं फिर उससे अच्छे से. तो इसलिए अगर आप रूल्स लिखना चाहें तो हाँ लिख सकते हैं, लेकिन उसको याद करने का कोई मतलब नहीं. एग्जाम्पल्स ज़रूरी होने चाहिए समझने के लिए, सो दैट कि हम अगर स्पॉटिंग एरर्स का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने लगें तो उससे हमारा काम चल जाए. So let's start today's topic. A verb must agree with its subject in number and person. कोई भी वर्ब जो है, जो भी क्रियाएं हैं हमारी, वो सब्जेक्ट के साथ जो है एग्री करनी चाहिए नंबर और पर्सन के हिसाब से. सब्जेक्ट के अगर नंबर के हिसाब से और पर्सन के हिसाब से वो एग्री करनी चाहिए. तो ये हमारे पास बहुत सारे यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं. फॉर एग्जाम्पल, द क्वालिटी ऑफ मैंगोज वाज नॉट गुड. मीन्स इन दिस सेंटेंस वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी. What subject is singular or plural? Then we will see that the subject is singular because मैंगोज के हिसाब से मत देखिए, यहाँ पर उन मैंगोज की क्वालिटी की बात की जा रही है, ना कि क्वालिटीज़ की बात की जा रही है. ओके, सो द क्वालिटी ऑफ मैंगोज वाज नॉट गुड. सो द क्वालिटी ऑफ मैंगोज यहाँ पे सिंगुलर है, इसलिए इसके हिसाब से यहाँ पर हमें वाज यूज करना पड़ेगा, नॉट वर. ओके, मैंगोज को मत देखिए, यहाँ पूरा मैंगोज यहाँ पर नाउन नहीं है, सब्जेक्ट यहाँ पर मैंगोज नहीं है, सब्जेक्ट है हमारा द क्वालिटी ऑफ मैंगोज. सब्जेक्ट वह होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हो. तो क्या आम के बारे में बात कर रहे हैं? नहीं, आम के गुणों के बारे में बात कर रहे हैं, क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं, गुण के बारे में. ओके, अनदर एग्जांपल ऑफ दिस, द इंट्रोडक्शन ऑफ टी एंड कॉफी एंड सच अदर बेवरेजेस हैज नॉट बीन विदाउट सम इफेक्ट. सो अगेन इन दिस सेंटेंस वी आर टॉकिंग अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ टी एंड कॉफी एंड सच अदर बेवरेजेस. ये हमारा सब्जेक्ट है. बेवरेजेस, tea and coffee is not our subject, its introduction. Means the introduction of tea and coffee and such other beverages is the subject of this sentence. So according to this we will use has. यहाँ पर has का यूज किया जाएगा. Okay, his knowledge of Indian vernaculars, another after. Okay, next example, his knowledge of Indian vernaculars is far beyond the common. Means again in this sentence we are not talking about vernaculars, we are talking about his knowledge of Indian vernaculars. So knowledge is his knowledge of Indian vernaculars is singular. So according to this यहाँ पर यूज का यूज किया जाएगा. ओके,
द स्टेट ऑफ हिज अफेयर्स वाज सच एज टू कॉज एंग्जाइटी टू हिज क्रेडिटर्स। आई थिंक you could understand these things. Now we are going to another rule, or we can say that another aspect, that is two or more singular noun or pronoun joined by and require a plural verb। दो या दो से अधिक अगर सब्जेक्ट है हमारे पास, दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं एंड के द्वारा। एंड इज अ कंजंक्शन मीन्स कनेक्टिंग वर्ड, ठीक है, क्योंकि यह दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन या फिर प्रोनाउंस को ऐड कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए इसे कंजंक्शन, जो भी कनेक्टिंग वर्ड होते हैं उनको कंजंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रीशियस मेटल्स। सो गोल्ड एंड सिल्वर मीन्स इन दोनों को, गोल्ड और सिल्वर को कनेक्ट किया गया है एंड के माध्यम से, जोड़ा गया है दोनों को, तो इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब कैरी करेंगी। ओके, फायर एंड वाटर डू नॉट एग्री। यहाँ पे एक फायर हमारे पास एक नाउन है, सिंगुलर नाउन है, वाटर भी सिंगुलर नाउन है, और इसको जोड़ा गया है एंड के द्वारा। सो ये जो है प्लूरल वर्ब जो है अपने साथ कैरी कर रही है। ही एंड आई वर प्लेइंग। नॉलेज एंड विजडम हैव टाइम्स नो कनेक्शन। मतलब ज्ञान और बुद्धिमानी का सदियों से कोई रिश्ता नहीं है। जरूरी थोड़ी ना है कि जो ज्ञानी हो वह बुद्धिमान हो। सो आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू another thing, that is but if noun suggest one idea or refer same person or thing, the verb is singular। हम पिछले एग्जाम्पल में देखे थे कि अगर दो नाउन या दो से अधिक नाउन या प्रोनाउन एंड के द्वारा कनेक्ट किए गए होते हैं तो वो जो है हमेशा कैसे वर्ब लेकर चलते हैं, प्लूरल लेकर चलते हैं। ओके, लेकिन अगर दो या दो से अधिक नाउन सेम आइडिया या फिर सेम चीज को रिफर कर रहे हैं, ठीक, सेम चीज को अगर रिफर कर रहे हैं तो वो सिंगुलर लेकर चलेंगे। जैसे टाइम एंड टाइड्स वेट फॉर नन, द नोबलिस्ट एंड पोएट इज डाइड। जैसे यहाँ पे नोबलिस्ट है हमारे साथ, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति रहा होगा, ठीक, वो नोबलिस्ट भी थे, पोएट भी थे। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी भी पोएट को देख लिया जाए, वो नोवेल भी लिखते थे और कवि भी थे, ठीक, तो वो उनकी डेथ हो गई। तो यहाँ पर द नोबलिस्ट एंड पोएट एक ही चीज को रिफर कर रहा है, एक ही आदमी को रिफर कर रहा है ना, सेम थिंग को, सेम चीज के बारे में बात की जा रही है, सेम व्यक्ति के बारे में। सो दैट्स व्हाई हियर द वर्ब इज सिंगुलर। यहाँ तक कि ये दो नाउन है। ओके, द नोबलिस्ट द पोएट अलग अलग नाउन है, एंड के द्वारा कनेक्टिंग वर्ड के द्वारा कनेक्ट भी की गई है, फिर भी यहाँ प्लूरल नहीं लगा, यहाँ सिंगुलर लगा है, क्योंकि ये सेम चीज को ही रिफर कर रहे हैं। आई थिंक इट्स यू कुड अंडरस्टैंड। ओके, where is that slide? It is here. My friend and benefactor has come। यहाँ पर my friend एक अलग नाउन है, ओके, benefactor एक अलग नाउन है, but they are same thing। and although it is connected by the conjunction and, लेकिन यहाँ पर सिंगुलर वर्ब कैरी करेंगे ये लोग। ऑनर एंड ग्लोरी इज ऑन इज हिज रिवार्ड, ठीक। सो मूविंग अहेड, वर्ड ज्वाइन टू अ सिंगुलर सब्जेक्ट बाय विथ एज वेल एज एक्सेट्रा कैरी सिंगुलर वर्ब। जो भी अगर वर्ड हैं अगर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जुड़े हुए हैं, बाय किसके द्वारा, विथ एज वेल एज एक्सेट्रा, इन सब के द्वारा अगर जुड़े हुए हैं तो वो सिंगुलर वर्ब ही हमेशा लेकर चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल द शिप विथ हिज क्रू मेंबर्स वाज लॉस्ट। सिल्वर एज वेल एज कॉटन हैज़ फॉलन इन प्राइस। यहाँ पर विथ है, यहाँ पर एज वेल एज है, ठीक। जैसे सिल्वर एक वर्ड है, इसको कॉटन के साथ, कॉटन एक सब्जेक्ट है, इसके साथ जोड़ा गया है किसके माध्यम से, एज वेल एज या फिर एज वेल एज के द्वारा। तो यहाँ पे हैज जो है हमारे पास सिंगुलर वर्ब यूज होगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। जहाँ पर भी विथ और एज वेल एज दिखे, वो दिखे और वहाँ पे कोई सिंगुलर सब्जेक्ट को किसी वर्ड के साथ कनेक्ट किया गया हो, ओके, तब जो है वहाँ पर सिंगुलर वर्ब ही हमेशा कैरी करेंगी। टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय और नॉर रिक्वायर अ सिंगुलर वर्ब। और या फिर नॉर के द्वारा अगर जो है दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट जोड़े गए हों तो हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, लेकर चलेंगे। और या फिर नॉर
फॉर एग्जाम्पल नाइदर प्रेज नॉर ब्लेम सीम्स टू अफेक्ट हिम, ना ही उसकी कोई प्रशंसा या फिर कोई आरोप लगाने से उसके ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं दिखता है। ठीक, तो सीम्स यहाँ पर हमारे पास सिंगुलर वर्ब है। ओके, सो इसके हिसाब से यहाँ पे नाइदर प्रेज नॉर ब्लेम, अगर नॉर या फिर और के साथ कोई भी दो सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, प्रेज सिंगुलर, ब्लेम सिंगुलर, प्रेज मतलब प्रशंसा, ब्लेम मतलब आरोप, तो ये दोनों सिंगुलर हैं सब्जेक्ट और नॉर के साथ कनेक्ट किए गए हैं, इसलिए यहाँ पे सीम्स सिंगुलर वर्ब हमेशा कैरी करेंगे। ओके, आइदर द कैट और द डॉग हैज़ बीन हेयर, यहाँ पर जो है द कैट सिंगुलर वर्ब, द डॉग सिंगुलर नाउन और के साथ कनेक्ट किया गया है, दैट्स वाई यहाँ पर हैज आया है हमारे पास। ओके, तो ये सब रूल्स हैं, या फिर रूल को याद करें तो थोड़ा ज़्यादा लंबा टाइम लगेगा, या फिर हम ये कह सकते हैं कि रूल्स पढ़ने से ज़्यादा अच्छा है कि एग्जाम्पल्स पर ध्यान दें। एग्जाम्पल से जो है सब चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। एग्जाम्पल अगर याद रखे रहेंगे तो फिर अगर कहीं पर भी कुछ मिलेगा। और इसके पहले भी थोड़ा बताना चाहते हैं कि इट इज़ अबाउट अंडरस्टैंडिंग, समझ होता है, ठीक है, समझ से करना चाहिए, बिकॉज अगर समझ ही नहीं रहेंगे तो फिर काम गड़बड़ हो जाएगा। नाइदर फूड नॉर वाटर वाज टू बी फाउंड, यहाँ पर फूड क्या सिंगुलर है, वाटर भी सिंगुलर है, आपके तो दोनों सिंगुलर है लेकिन नॉर के साथ कनेक्ट है, जैसे सिंगुलर है अगर यहाँ पे सोचें, ठीक, और नॉर या फिर और के साथ कनेक्ट किए गए हैं, दैट्स वाई यहाँ पे हमारे पास सिंगुलर वर्ब आई है। बट व्हेन वन ऑफ द सब्जेक्ट जॉइंड बाय और नॉर इज प्लूरल, द वर्ब मस्ट बी प्लूरल एंड द प्लूरल सब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड नियरेस्ट द वर्ब। ओके, सो नाइदर द चेयरमैन नॉर द डायरेक्टर्स आर प्रेजेंट, ना ही चेयर में, देखिए अगर एक सिंगुलर हो एक प्लूरल हो, ठीक, अभी तक क्या था, अगर दोनों सिंगुलर है और के साथ या फिर नॉर के साथ जुड़े हुए हैं तब वो क्या लेंगे अपने साथ, यहाँ फुल स्टॉप होना चाहिए, वो अपने साथ सिंगुलर वर्ब कैरी करेंगे। ठीक, लेकिन अब इसमें क्या है, अगर एक सिंगुलर है या एक प्लूरल है तब क्या करेंगे। ठीक, अगर एक सिंगुलर है एक प्लूरल है और नॉर या फिर और के साथ यूज किए गए हैं, किसके साथ, और नॉर के साथ या फिर और के साथ यूज किए गए हैं, तब क्या होगा, देन दे विल कैरी प्लूरल वर्ब। ओके, द वर्ब मस्ट बी प्लूरल, तो फिर वो प्लूरल वर्ब अपने साथ लेकर चलेंगे। और यहाँ पर एक शर्त और है, शर्त क्या है, स्पॉटिंग एरर्स में या फिर सेंटेंस रीअरेंजमेंट में, ठीक, सेंटेंस रीअरेंजमेंट नहीं कह सकते हैं कि वर्ड को अगर रीअरेंज करने के लिए दे दिया जाता है तो उसमें, ठीक, सेंटेंस रीअरेंजमेंट तो सेंटेंस खुद ही स्ट्रक्चर में अच्छा होगा, उसको अरेंज करना पड़ेगा, लेकिन अगर वर्ड्स को अलग अलग करके दे दिया जाए, कहा जाएगा कि जैसे नाइदर द चेयर पैन, सॉरी फॉर एग्जांपल, लेट्स एक मिनट, जैसे नाइदर द लिख दिया गया, उसके बाद चेयरमैन नॉर द डायरेक्टर्स आर प्रेजेंट, इस सबको सफल करके दे दिया गया अलग अलग, जैसे पहले लिख दिया गया आर प्रेजेंट नाइदर द चेयरमैन नॉर द डायरेक्टर्स, अगर अलग अलग करके दे दिया गया और कहा जाएगा इसमें कि इसको सबको सेट कीजिए, तो फिर वहाँ पर ही यूज किया जाएगा हमारा। तो क्या करेंगे, जो भी हमारे पास पहला सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, ठीक है, उसको पहले लिखेंगे, और जो प्लूरल सब्जेक्ट होगा हमारे पास उसको प्लूरल वर्ब के पास लिखेंगे। मीन्स नाइदर द चेयरमैन नॉर द डायरेक्टर्स आर प्रेजेंट, इसको ऐसे नहीं कर सकते हैं कि नॉर द डायरेक्टर्स, नाइदर द डायरेक्टर्स, इस चीज़ को द डायरेक्टर्स और द चेयरमैन की को हम एक दूसरे से रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। नहीं सोचो कि नाइदर द डायरेक्टर्स नॉर द चेयरमैन आर प्रेजेंट, इट इज़ रॉन्ग। ओके, हमेशा ध्यान रखिएगा जो भी प्लूरल वर्ब होगी वो हमारे पास, अगर दो सब्जेक्ट है, सॉरी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो जो प्लूरल सब्जेक्ट होगा वो वर्ब के साथ होगा, ठीक है, वो वर्ब के पास होगा, नियरेस्ट द वर्ब होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका यूज किया जा सकता है। ओके, वन और अदर ऑफ दोस्त फेलोज हैव स्टोलन द वॉच, वन तो वैसे ही सिंगल है ना, वन, दोज ऑफ अदर ऑफ दोस्त फेलोज मतलब उनके साथी और बाकी जो साथी हैं, तो यहाँ पर ये प्लूरल है, ठीक है, ये हमारे पास प्लूरल है, ये क्या है हमारे पास, ये है सिंगुलर, ठीक, लेकिन इसको और के साथ ऐड भी किया गया है, किसके साथ ऐड किया गया है, और के साथ ऐड भी किया गया है, ठीक है, और के साथ ऐड भी किया गया है। हैव स्टोलन द वॉच, उन्होंने क्या की है, घड़ी को चुराई होगी, तो यहाँ पर इसके हिसाब से अदर ऑफ दोस्त फेलोज के हिसाब से यहाँ पर हैव का यूज किया गया है। इज इट फाइन और नॉट।
आइदर, नाइदर, ईच, एवरीवन, मैनी या मस्ट बी फॉलोड बाय ए सिंगुलर वर्ब। आइदर या तो, नाइदर ना तो, ईच प्रत्येक, एवरीवन सभी लोग, मैनी आ मस्ट बी फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब। ये सब चीज़ें, ये सब वर्ड जो भी अभी लिखा है यहाँ पे, आइदर, नाइदर, ईच, एवरीवन, मैनी आ, इनके सब के साथ जो है हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होगी। जैसे ईच ऑफ दिस सब्सटेंसेस इज फाउंड इन इंडिया, ठीक। मैनी अ मैन हैज डन सो, बहुत सारे आदमियों ने ऐसा किया है, बहुत सारे पदार्थ इंडिया में पाए जाते हैं। देखिए, जैसे बहुत सारे सब्सटेंस पदार्थ रखे गए हैं एक पास, कह रहे हैं इनमें से जितने भी सब्सटेंसेस हैं वो सब इंडिया में पाए गए हैं, ओके, पाए जाते हैं। नाइदर ऑफ द टू मैन वाज स्ट्रांग, एवरी वन ऑफ द बॉयज लव्स टू राइड। तो यहाँ पर जैसे एवरी वन, नाइदर, मैनी या ईच ऑफ दीज, इन सब के साथ हमेशा कैसी वर्ब होगी? सिंगुलर वर्ब होगी, ओके। Now move to another slide, that is some nouns in plural forms but singular in meaning takes singular verb। हाँ, इसके पहले भी मैंने बताया था थोड़ा सा कि अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से होनी चाहिए। सब्जेक्ट तो सेंटेंस में देखना चाहिए कि वो कह क्या रहा, सब्जेक्ट का भाव सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे द न्यूज इज ट्रू, जैसे इसमें लिखा सम नाउन्स इन प्लूरल फॉर्म में होते ही हैं, लेकिन सिंगुलर इन मीनिंग, मीनिंग में कैसी होती हैं? सिंगुलर होती हैं। टेक सिंगुलर वर्ब, हमेशा सिंगुलर वर्ब लेकर चलती हैं अपने पास। जैसे द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, सिन मतलब पाप होता है, तो जो पाप की मजदूरी होती है वो मृत्यु होती है, ठीक है। एडियम्स है, मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, ठीक। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स प्लूरल है फॉर्म में, लेकिन ये मैथमेटिक्स सिंगुलर फील हो रही है, दैट्स वाई यहाँ पे इज का यूज किया गया है। पॉलिटिक्स वाज विथ हिम द बिजनेस ऑफ हिज लाइफ, द न्यूज इज ट्रू, ओके। न्यूज प्लूरल है, फिर भी यह सिंगुलर वर्ब अपने साथ कैरी करेगी। सम नाउन सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन सेंस टेक्स अ प्लूरल वर्ब, ठीक। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सेंस के हिसाब से सेंस कैसा आ रहा है। सेंस अगर सिंगुलर का है, ठीक, तो वह सिंगुलर वर्ब से कैरी करेगा, जैसे इस वाले एग्जाम्पल में हमने देखा था, ठीक है। इन सब में अगर सेंस उसका प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब कैरी करेगा। फॉर एग्जाम्पल इसमें कह रहा है अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट मार्केट रेट 12 डजन कॉस्ट 100 रुपी। प्रेजेंट आज के मार्केट रेट के हिसाब से 12 दर्जन का दाम 100 रुपये है, ठीक। 12 दर्जन कुछ भी हो सकता है, केला ही होता है अधिकतर, है ना। पेंसिल 12 दर्जन तो कुछ भी हो सकता है, 12 दर्जन आदमी भी हो सकते हैं, वट एवर यू वांट टू नो। तो 12 डजन कॉस्ट 100 रुपीज़। अब देखो ये सम नाउन सिंगुलर इन फॉर्म, अब 12 डजन तो लिखा नहीं है, है ना, एस तो लगा नहीं है, इसका मतलब ये सिंगुलर लग रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या लग रहा है, 12 डजन में केवल एक ही चीज़ होगी? नहीं, बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारी चीज़ें नहीं होंगी, चीज़ें एक होंगी लेकिन बहुत सारी होंगी। सो वो प्लूरल फॉर्म, प्लूरल सेंस दे रही है ना, तो इसीलिए इसको हमेशा जो है प्लूरल वर्ब के साथ यूज करेंगे। दैट मीन्स कॉस्ट यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक। अगर कॉस्ट होता, यस लगा होता कॉस्ट में, तो दैट इज सिंगुलर वर्ब। नन इज कंस्ट्रक्टेड इन द सिंगुलर और प्लूरल एज द सेंस में रिक्वायर। तो यहाँ पर भी सेंस की बात होती है कि हम अपना सेंस कैसे यूज कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग कैसी है इंग्लिश के बारे में। तो एग्जाम्पल्स की मदद से अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जा सकती है। जैसे कहीं स्पॉटिंग एरर्स का कोई क्वेश्चन आ जाता है, तो उसमें क्या करते हैं, पढ़ के देखते हैं, अच्छा लगता है तो ठीक है, अच्छा नहीं लगता समझो गलत हो जाता है ना। तो पढ़ के जान लेते हैं, कभी कभी हाँ सही हो जाता है कि पढ़ के देखते हैं, अगर ख़राब लग रहा है तो क्या करते हैं उसको कि हाँ एक गलत है। अगर सही लगता है पढ़ने में, अच्छा लगता है, तो फिर कहते हैं हाँ ऐसा ही है। तो वहाँ पे तो उसी अब हम अपना सेंस यूज कर लेते हैं वहाँ पे अपने आप से ही, ठीक है। तो वहाँ पे रूल्स नहीं देखते हैं, क्योंकि रूल्स तो यहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, ठीक। कहीं पर सिंगुलर लग जा रहा है, कहीं प्लूरल। फॉर एग्जाम्पल डिड यू बाई एनी मैंगोज, तो हाँ, लेकिन उसके साथ साथ अपने सेंस के यूज के साथ साथ भी रूल्स जानना अनिवार्य है, ठीक है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, सेंस हमारा कहता है कि नहीं यहाँ पे गलत है और वही सही होता है। सो अवॉइडिंग दीज थिंग्स, इसको अवॉइड करने के लिए, इस चीज़ को हमें ज़रूरी होता है कि रूल्स के साथ साथ अपना सेंस भी यूज करें। तो रूल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, बट नॉट लर्निंग द रूल्स बट हैविंग द नॉलेज ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ दैट रूल्स, ओके। जैसे इसमें दिया गया है डिड यू बाई एनी मैंगोज, क्या तुमने मैंगोज खरीदा, आम का सीजन वैसे भी चल रहा है। देयर वर नन इन द मार्केट, तो उन्होंने कहा कि डिमांड बहुत ज़्यादा है इसलिए सप्लाई कम है, मार्केट में कोई आम नहीं था, ठीक है। देयर वर नन, यहाँ पर मैंगोज पूछा है ना, मैंगोज के हिसाब से यहाँ पर वर का यूज हो गया है,
ये क्वेश्चन टाइप मतलब क्वेश्चन है, यहाँ पे आंसर है, समझने के लिए ऐसा हमने क्रिएट कर दिया है, ठीक है। तो डिड यू बाई एनी मैंगोज, तो उन्होंने कहा देयर वर नन इन द मार्केट, मीन्स यहाँ पर नन के साथ वर का यूज हुआ है ना, किस किस लिए, क्योंकि मैंगोज के हिसाब से। यहाँ पे हैव यू ब्रॉट मी अ लेटर, क्या तुमने मेरे लिए कोई पत्र लाया, तो उन्होंने कहा देयर वॉज नन फॉर यू, क्योंकि यहाँ पे लेटर सिंगुलर है, दैट्स वाई यहाँ पे नन कुछ के साथ सिंगुलर वर्ब के साथ कैरी कर रहा है, चल रहा है, ठीक है। आई थिंक थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, ओके। अनदर एग्जाम्पल या फिर अनदर रूल वी कैन से दैट अ कलेक्टिव नाउन टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, जो भी कलेक्टिव नाउन्स होते हैं वो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं व्हेन द कलेक्शन इज थॉट एज वन अदरवाइज प्लूरल। फिर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसा लग रहा हो कि जो कलेक्टिव नाउन है हमारे पास, ओके, अगर ऐसा लग रहा है कि जो हमारे पास कलेक्टिव नाउन है वह सिंगुलर की तरह लग रही है, ठीक है, ठीक, उसमें डिवाइडेशन नहीं है कि आधी सिंगुलर आधी प्लूरल, दो चीज नहीं मिल रही है, मतलब कहने का मतलब अगर वो सिंगुलर की तरह फील हो रहे हैं कलेक्टिव नाउन्स तो फिर उनको सिंगुलर के साथ रखेंगे, अदरवाइज प्लूरल। अगर ऐसा नहीं फील हो रहा है, अगर ऐसा नहीं लग रहा है कि जो भी हमारे पास कलेक्टिव नाउन है वो अलग अलग लग रही हो, ठीक है, तब वहाँ पर प्लूरल यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द कमेटी हैज इशूड इट्स रिपोर्ट। अब कमेटी ने अगर रिपोर्ट इशू की है अपनी, अगर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट को इशू किया है तो उसके सारे मेंबर्स आपस में चर्चा किए होंगे, फिर एक डिसीजन पे पहुंचे होंगे, ठीक है, तो मीन्स द कमेटी एक तरीके से यूनाइट में है, मीन्स वो एक ही लग रही है ना, ठीक। कमेटी 2-3 लोग की जितने की भी हो, 10 12 15 20 25, तो उस कमेटी के सभी लोग एक चीज़ पे एग्री हुए होंगे, यानी कि उसमें विघटन नहीं दिख रहा है ना, डिकम्पोजिशन नहीं दिख रहा है, अलगाव नहीं दिख रहा है, तो एक ही चीज़ फील हो रही है कि लग रहा है कि हाँ सभी ने एक साथ मिल करके एक चीज़ पर एग्री हुए, मीन्स वो डिवाइड नहीं है आपस में, अलग अलग नहीं है, एक ही माना जाएगा उनको। द कमेटी हैज इशूड इट्स रिपोर्ट, दैट्स वाई यहाँ पर हैज यूज किया गया है। द कमेटी आर डिवाइडेड ऑन द माइनर पॉइंट। अब देखो यहाँ पे वही कमेटी थी, आधे लोग इस पक्ष में चले गए, मान ली कोई डिबेट हो रही थी, आधे लोग पॉइंट ए को मानने लगे, आधे लोग पॉइंट बी को मानने लगे, ठीक, तो वहाँ पर किसी माइनर पॉइंट पर वो लोग डिवाइड हो गए, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो कमेटी थी वो डिवाइड हो गई किसी माइनर पॉइंट पर, इसका मतलब किसी छोटी बात पर, कोई भी बात हो, ठीक, तो इसका मतलब वो अलग अलग हो गई, इट मीन्स दे आर टू नाउ। एक ए वाली जो ए साथ हैं वो ए कमेटी हो गई, मतलब हो नहीं गई, सिर्फ समझने के लिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है ना कि वो अलग अलग हो गई ना, डिवाइड हो गए आपस में, सो उनको हम प्लूरल मान लेंगे। तो सेंस और अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से भी इन सबका यूज किया जाता है, ओके। When plural noun is proper name for some collective unit followed by singular verb, SING में सिंगुलर वर्ब शॉर्ट फॉर्म लिख दिए हैं वैसे। अगर बहुत कुछ प्लूरल नाउन है, वो प्रॉपर नेम है किसी चीज़ का, ठीक, किसी सम कलेक्टिव यूनिट, जैसे यूएसए की बात कर लें थोड़ा सा, यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स लिखा है, ओहो गलती है, यहाँ पे गलती ये है कि ये प्रॉपर नाउन है, सो इट का लेटर जो है हमेशा कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अरबियन नाइट्स नेम है, प्रॉपर नाउन है, यहाँ पे गुली वेजिटेबल्स आई है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान देना चाहिए, पंचुएशन का भी हमें, कि कहाँ पे सिंगुलर होना चाहिए, कहाँ प्लूरल होना चाहिए, ठीक। व्हेन प्लूरल नाउन इज अ प्रॉपर नेम फॉर सम कलेक्टिव यूनिट, बहुत सारी कलेक्शन चीज़ों के लिए उसको कलेक्ट कर लिया गया है, उसके बाद वो प्रॉपर नाउन हो गई। फॉर यूनाइटेड स्टेट जो है, यूनाइटेड स्टेट कई सारे स्टेट को मिला करके बना है, ठीक है, जैसे कैलिफोर्निया, वाशिंगटन डीसी, टेक्सास, ये सारे स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स को मिला करके। और हाँ, मज़े की बात बताएं, वहाँ के जो स्टेट्स हैं उनको ये भी अथॉरिटी रहती है, पावर रहती है कि वो अपने देश से अलग हो सकते हैं, बट इसके लिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना, सुप्रीम कोर्ट का चक्कर खाना पड़ जाता है, सुप्रीम कोर्ट बाद में मना कर देता है, ठीक। ऐसा एक दो बार हुआ है कि यूनाइटेड स्टेट जो है अलग अलग स्टेट्स होते हैं, उनको यूनाइट करके सिर्फ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कह दिया गया, ठीक है। अरबियन नाइट्स इज स्टिल अ ग्रेट बुक, अरबियन नाइट्स एक बुक है। तो अब देखिए यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट अलग अलग स्टेट्स हैं उसमें, ठीक, लेकिन स्टेट्स वैसे भी वो प्लूरल होता है, लेकिन फिर भी वो जो है एक कलेक्शन है बहुत सारे स्टेट का, और वो सिंगुलर है, क्यों, सेंस से सिंगुलर है, ठीक है। बहुत सारे कलेक्शन है बहुत सारे स्टेट्स का, और स्टेट आपस में यूनाइट करके बनाए गए हैं, और वो एक प्रॉपर नेम मिल गया है उनको, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सो हैज अ बिग नेवी, उसके पास बहुत बड़ी है, तो यहाँ पे हैज जो है सिंगुलर यूज किया गया है, ओके। कलर ही चेंज कर देते हैं, ठीक नहीं लग रहा है इसमें सारे कम कलर की।
चलो ठीक। हैज़ अ बिग नेवी, उसके साथ बहुत बड़ी नौसेना है। ठीक। द अरबियन नाइट, हाँ बताए थे ना, पंचुएशन का ध्यान देना है, यू का यूनाइटेड का यू, ये सब कैपिटल रहेगा, अरबियन नाइट्स में भी कैपिटल रहेगा ए और एन। अरबियन नाइट्स एक बुक का नाम है, ठीक है, इट इज स्टिल अ ग्रेट बुक। ठीक, वो अभी तक एक जो है बहुत बड़ी अच्छी किताब है, महान किताब है कह सकते हैं। गुलिवर्स ट्रेवल वाज रिटन बाय स्विफ्ट। गुलिवर्स ट्रेवल्स, देखो ये जो है इसमें जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं बहुत सारी कहानियाँ लिखी गई हैं, ठीक है, उनका संकलन या फिर उनको एक ही नाम से किसी नाम से कंपोज कर दिया गया है, ठीक, फलाने नाम से। ठीक, तो अब उसको जो है सारी कहानियाँ 1 2 3 4 5 6 कहानियाँ हैं, लेकिन वो सारी कहानियों का कलेक्शन है ना, तो उसको तो एक ही नाम दिया जाएगा, यानी कि वो भले ही प्लूरल हैं लेकिन उनको एक प्रॉपर नेम दे दिया जाए है, कलेक्ट कर लिया गया है आपस में, तो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेकर के चलेंगे। ओके, आई थिंक इट्स एनफ फॉर रूल नंबर 10। नाउ वी आर मूविंग अहेड। 11 नंबर, व्हेन अ प्लूरल नाउन डिनोट्स सम स्पेसिफिक क्वांटिटी और अमाउंट कंसिडर्ड एज वन फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब। ठीक, अगर कोई प्लूरल नाउन है वो किसी एक विशेष क्वांटिटी, स्पेसिफिक क्वांटिटी या फिर अमाउंट को डिनोट कर रहा है, तो वो जो है हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करेगा अपने साथ। जैसे 15 मिनट्स इज अलाउड टू ईच स्पीकर, सभी स्पीकर्स को केवल 15 मिनट अलाउ किए गए हैं। 10 किलोमीटर्स इज लॉन्ग वॉक, ओके, 10 किलोमीटर्स बहुत लंबा रास्ता होता है। 50,000 रुपीज इज अ लार्ज सम। ठीक, तो यहाँ पे नाउन जो है प्लूरल है लेकिन वो स्पेसिफिक क्वांटिटी या फिर अमाउंट को यूज कर कंसिडर डिनोट कर रही है, दैट्स वाई यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज होगा। इन एग्जाम्पल्स की मदद से हम अच्छे सीख सकते हैं। इसके साथ साथ ही अगले वीडियो में इसी सब्जेक्ट और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से कुछ एक्सरसाइज होगी, उसमें उसमें स्पॉटिंग एरर्स कर देंगे या फिर वर्ब देख लेंगे उसमें सिंगुलर और प्लूरल वर्ब, जैसा भी एक्सरसाइज अच्छे से देख, जैसे भी अच्छा लगेगा स्पॉटिंग एरर्स के हिसाब से ही कर देंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो उसमें जो है उस एक्सरसाइज में जब करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा कि हम कौन सा रूल, देखिए इन रूल्स को कहाँ पे यूज किया जाएगा, कैसे किए हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जान लेंगे। ओके, हाँ, वी आर इन्वाइटिंग योर सजेशन इन द कमेंट बॉक्स। द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग, हम आपके सुझाव कमेंट बॉक्स में आमंत्रित हैं। आपको जो भी सुझाव देना है वो आप आकर उसमें दे सकते हैं, जो भी कमियां हैं उनके बारे में बता सकते हैं। ठीक है, आलो जितने लोग अभी तक कमेंट करते हो कहते हैं हाँ ठीक है बढ़िया है, बट अगर आपको कुछ अच्छा सजेशन मिलेगा तो उस पर ध्यान दिया जाएगा। जो भी सुझाव हमें आपको देना है वो हमें दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में आकर के। PDF के लिए सफलता क्लासेस 002@gmail.com या फिर प्रीवियस वीडियो देख करके उसमें हमारा नंबर है, उससे देख लीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक जो भी करना हो आपको देख लीजिएगा, इसमें अगर अच्छा लगा हो तो कर दीजिएगा। ओके, बाय, टेक केयर।